my channel, and in today's video finally I'm going to be sharing with you guys that magical product which literally changed the game of my skin. If you know me, then maybe you know that I was suffering from bad acne prone problem and कोई भी product वो full heal नहीं कर पा रहा था, and lots of acnes and pimples and prones for this like बहुत सारा face पे spot हो गया था, and whenever I touch my face like this I can feel like thousands of bumps जो कि visible नहीं है, and I was like so depressed, and that's why मैंने I think 2 हफ्ते नवंबर में कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था just because of this. So then after that finally I found something like which is like the magical thing, and if I think you can already guess that I'm going to talk about everything about like chemical peeling solution. Basically this is like chemical exfoliation. So if you guys are interested, please keep on watching. Okay, so when it comes to chemical peeling kind of a thing, first जो चीज हम लोगों के दिमाग पे आते हैं that is the Ordinary one, because if I am not wrong that brand is the first like जो इनोवेट किया था दिस इज द थिंग लाइक केमिकल, लाइक आपको एसिड आपकी जो डेड सेल है वो रिमूव करेगा इंस्टेड ऑफ लाइक अ फिजिकल एक्सफोलिएंट्स. So now today I'm not going to be talking about like the Ordinary one. Now first move on to the first part, which is introduction and talking about the ingredients. Okay, so जो ब्रांड के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी which is this is Minimalist and this is AHA, their peeling solution. It has like a 25% AHA, 5% PHA and 2% of BHA. So you can clearly see that ये जो color है it is like kind of a yellowish tone, like orange and yellow मिलके color है, and this is quite thick. This is not something runny. जो Ordinary का जो है which looks like exactly red, like blood red, तो color बहुत like different है, but packaging is quite similar. You can say it's like really similar to the Ordinary one, and Ordinary one पे है 30% AHA and 2% BHA, तो इसमें extra जो है which is 5% PHA. Okay, so the now next move on to the pH level. इसका जो pH level है this is from 3.4 to 3.8, तो बीच में 0.4 का वेरिएशन है which is quite like large, क्योंकि if you have like अगर आपने थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ा है तो you guys know that 0.1 का जो pH है वो भी बहुत like एक huge change ला सकता है. So it is not like कोई approximate value नहीं है, it's like 3.4 to 3.8, but ये जो है under 4 है, so you can understand that this is like quite acidity. It has like quite acidity, so whenever you use it carefully. So now next move on to the ingredients part कि क्या क्या ingredients है and क्या क्या काम है. तो वाटर के एक्वा के जगह इन्होंने एलोवेरा जूस यूज किया है. सो इफ यू आर लाइक इफ यू हैव लाइक अ सेंसिटिव स्किन फ्रॉम एलोवेरा, तो आई डोंट थिंक यू कैन यूज इट, बट एज इट हैज लॉट्स ऑफ अदर एसिड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि वो जो एलोवेरा का जो लाइक अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है एलोवेरा से, आई डोंट थिंक दैट विल बी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा और भी केमिकल है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट वन. डिस्क्लेमर, क्योंकि इसके अंदर वाटर की जगह एलोवेरा है. सो एलोवेरा का एक काम पॉजिटिविटी क्यों है एलोवेरा, बिकॉज इट विल लाइक हील योर फेस, काम डाउन योर फेस, क्योंकि आफ्टर यूजिंग केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन इट्स लाइक बहुत टेंडेंसी होता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाए, तो उतना ज्यादा सेंसिटिव ना हो, इसीलिए उन लोगों ने एलोवेरा यूज किया है. बट फॉर दिस आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल कांट यूज अगर आपकी स्किन एलोवेरा से लाइक सेंसिटिव है. ऑनेस्टली माई स्किन इज नॉट, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि एलोवेरा जेल इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी, सो आई कैन यूज इट लाइक ब्लाइंडली. एंड व्हाई इट्स येलो, बिकॉज इट हैज टर्मरिक. टर्मरिक इसलिए है ताकि आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन ना हो, क्योंकि केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन कैन मेक योर स्किन इरिटेटिव, तो वो जो इरिटेटिव फीलिंग ना हो, इरिटेशन ना हो, ताकि इसीलिए टर्मरिक दिया गया है. सो दिस इज लाइक टू बेस्ट पॉइंट फॉर मी, एलोवेरा जूस एंड टर्मरिक. एंड नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अदर थिंग्स. सो AHA के अंदर जो पड़ता है व्हिच इज ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड इसमें बहुत सारा है, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड इज द मेन इंग्रेडिएंट व्हिच विल एक्सफोलिएट योर स्किन, व्हिच विल लाइक डिसॉल्व योर dead skin.
द बेस्ट थिंग इज दैट फर्स्ट यहाँ पर जो है वो एलोवेरा जूस है ऑफकोर्स, सेकेंड है ग्लाइकोलिक एसिड एंड थर्ड है लैक्टिक एसिड which is also a strong acid which will exfoliate your skin from your upper surface। तो लैक्टिक एसिड के बाद है PHA का कंपोनेंट, PHA मीन्स जो PHA का जो एसिड है उसका कंपोनेंट है, उसके बाद मैंडेलिक एसिड है। तो मैंडेलिक एसिड इज लाइक हियर सॉरी PHA इसके अंदर 5% है, उसके बाद अगर मैंडेलिक एसिड है तो वी कैन गेस दैट कि मैंडेलिक एसिड 5% से कम है। तो मेन 25% जो AHA है तो उसमें मैक्सिमम है ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड 5% से कम है बिकॉज दैट इज लाइक आफ्टर PHA। तो PHA इसके अंदर जो कंपोनेंट दिया गया है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है which is far bigger than the glycolic acid one which is AHA का कंपोनेंट। तो जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ज्यादा है, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। सो PHA का जो कंपोनेंट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है which is 178, whereas जो AHA का जो ग्लाइकोलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है which is 76। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, इसीलिए PHA आपकी स्किन के अंदर बहुत लाइक स्लोली पेनिट्रेट करेगा बिकॉज द साइज ऑफ दिस कंपोनेंट इज बिग, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ दिस कंपोनेंट इज बिग, इसलिए वो स्लोली आपकी स्किन पे पेनिट्रेट होगा एंड फॉर दैट आपकी स्किन का जो इरिटेटिव पार्ट है वो ये रिमूव करने में मदद करेगा बिकॉज इट विल नॉट इरिटेट योर फेस विच इज द बेस्ट थिंग एंड ऑल्सो ये बहुत लाइक स्लोली आपके फेस के अंदर जाता है, इसीलिए इट विल like give you the extreme level of moisturization। So yeah, this is like AHA and PHA। Now we are going to move on to BHA which is the last component and BHA में दिया गया है salicylic acid, वो भी 2% because salicylic acid is quite like concentrated so you can't give like lots of। तो salicylic acid का जो काम है which will penetrate into your skin and it will like clean your face from inside and that's why it will remove all the excess oil from your face and that's why chemical peeling thing can make your skin little dry like that day only। जब भी इस्तेमाल करोगे उसी दिन आपकी फेस थोड़ा सा ड्राई फील हो सकता है, कोई भी आप केमिकल सोल्यूशन इस्तेमाल कर लो, it will make your face little dry। so if you have like extreme level of dry skin I will suggest that before using it keep that in your mind that your फेस विल बी लाइक सहारा डेजर्ट जैसे थिंग, बट डोंट वरी, इसका भी उपाय आपके पास है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज केमिकल पीलिंग थिंग इज लाइक द गेम चेंजर फॉर योर स्किन। सो दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट। आई नो इट्स क्वाइट बिग सो इफ यू वांट you can skip, but honestly you need to know about the science behind this before applying this। so now we are going to move on to the application part। Okay, so before applying it keep that in your mind that you need to shake it रियली वेरी वेल एंड ऑल्सो आपको इसे ड्राई फेस पे अप्लाई करना होगा। लाइक आप अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लो, उसके बाद फेस को ड्राई कर लो। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ अ सीरम और टोनर अंडरनीथ दिस, जस्ट क्लीन योर फेस एंड नाउ अप्लाई इट। तो यू कैन सी दैट आई एम जस्ट स्प्रेडिंग दिस थिंग, आई एम नॉट लाइक ब्लेंडिंग और लाइक मैसाजिंग इट। अब मैसाज ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं होगा बिकॉज इट्स अ मास्क एंड प्लीज़ कीप दैट इन फ्रॉम योर आई। इसको आई में बिल्कुल भी एरिया पे बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करो एंड मैक्सिमम आप इसे 10 मिनट्स तक छोड़ सकते हो, मिनिमम आप 5 to 6 मिनट्स तक छोड़ो। इफ़ यू आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लीव इट फॉर 5 मिनट्स। सो या नाउ इसको आप छोड़ दो एंड देन वॉश इट ऑफ। So you have seen the application part। तो remove कब इसे कैसे करोगे? So as I have said before, you need to leave it for 10 minutes, not more than that। You can like leave it for 5 minutes or 6 minutes too, but 10 minutes से ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो now take like warm water, not like boiling water। warm water से वो जो face है वो ऐसे आप clean करो, like remove the face, remove the thing like this। don't like put water on your face like ऐसे, like वो ऐसे मत करो क्योंकि अगर यहाँ पर जो केमिकल पीलिंग है वो आपके आईज पे आएगा एंड यू नीड टू लाइक give a distance from your eye and this thing because this is acid। you have to keep that in your mind, this is acid। so don't like put this much of thing on your eye, it can like मतलब वो इस्तेमाल ही मत करो आई पे। ओके, सो बिफोर लाइक जब आप इसे रिमूव करोगे तो क्लीन द फेस लाइक दिस। वो पहले वो रिमूव कर लो जो फेस पे है, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपनी फेस को जैसे हम धोते हैं धो लो एंड लाइक रिमूव द लाइक जो टॉवल से वो आप फेस को आप अच्छी तरह से ड्राई कर लो एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट।
ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपकी जो एज है वो 20 से कम है, सो डू नॉट यूज इट. इट इज फॉर ओनली फॉर अबव 20. इट इज मेंशन बिकॉज दिस इज कंसेंट्रेटेड एसिड. कीप दैट इन योर माइंड. इफ यू आर लाइक अंडर 18 और अंडर 19, लाइक अगर आप टीनेजर्स हो, सो डू नॉट यूज इट. एंड अगर आप 20 से ऊपर भी हो एंड अगर आपने कोई एसिडिक चीज पहले इस्तेमाल किया है तो ही आप इसे इस्तेमाल करो. नॉट ओनली दिस, एनी काइंड ऑफ केमिकल थिंग. लाइक मेरी जो स्किन केयर रूटीन है उसके अंदर लाइक लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइलोरॉनिक एसिड, मैंडेरिक एसिड, ये होता ही रहता है बिकॉज आई एम करेंटली यूजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी स्किन केयर. बट दोज आर लाइक डाइल्यूटेड एसिडिक थिंग, इसलिए मैं रोज इस्तेमाल कर सकती हूँ. अगर आपने पहले कभी कोई एसिड अपनी फेस पे इस्तेमाल नहीं किया है लाइक एसिडिक स्किन केयर थिंग, सो आई विल सजेस्ट पैच टेस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इवन मैंने माई स्किन कैन टॉलरेट लॉट्स ऑफ एसिड ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो लाइक इट्स नॉट बैलेंस्ड. तो फिर भी मैंने जो ये चीज है वो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था, 10 मिनट्स तक रिमूव किया एंड मैंने 48 आवर्स के बाद ही मैंने ये फेस पे अप्लाई किया है बिकॉज दिस इज कंसेंट्रेटेड एसिड. मैं ये बार बार बोल रही हूँ, सो यू हैव टू लाइक वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट. अगर कुछ नहीं हुआ है देन ट्राई इट हेयर. यहाँ पर इस्तेमाल करो, 10 मिनट्स तक रखो, रिमूव करो, 48 आवर्स वेट करो. अगर कुछ नहीं हुआ है देन यूज ऑन योर फेस. So keep that in your mind. And also the thing is that you can use it only at night. This is for your PM. This is not for the AM thing. आप सुबह ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. And now next move on to the main thing कि कैसे आप स्किन केयर करोगे. After using chemical peeling solution, do not use any kind of acidic property वाला skin care on your face. Especially do not use niacinamide acid or lactic acid on your face because it will like आपकी जो स्किन का जो pH है वो इसको थोड़ा सा increase कर सकता है. And that's why यहाँ पर जो ingredients है वो आपकी स्किन पे काम नहीं करेगा. So do not use that. अगर आप कोई भी acidic property face पे इस्तेमाल करते हो तो you can use hyaluronic acid because hyaluronic acid has like a beautiful moisturization property. So you can use any kind of skincare which has like a hyaluronic acid. So I will suggest that आप Neutrogena का जो Hydro Boost, I will attach the picture here, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो because this product has hyaluronic acid and the मॉइस्चराइजेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक टू मच बिकॉज ये केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करने के बाद यू हैव टू यूज समथिंग विच हैज लाइक अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी. सो कीप दैट इन योर माइंड. नेक्स्ट डे वो रात को आप मिनिमम स्किन केयर करो. सो आई विल सजेस्ट यूज रोज वाटर, एलोवेरा जेल एंड दैट्स इट. अगर आपके फेस पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है सो यूज एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर which doesn't have like any kind of acidic thing. You can use Plum का green tea range, that is perfect. या फिर एम कैफीन का green tea range, उसके अंदर कोई भी एसिड नहीं होता है, आई थिंक नहीं होता है, बट फिर भी आप एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना. सो दिस इज लाइक द पोस्ट स्किन केयर. नेक्स्ट डे लाइक ये आपको रात में इस्तेमाल करना होगा. नेक्स्ट डे जो स्किन केयर है, फर्स्ट नींद से उठने के बाद आपको ये दिमाग में रखना होगा, वॉश योर फेस, यूज एनी काइंड ऑफ रोज वाटर और एनी टोनर जिसमें एसिड नहीं है, देन तुरंत अप्लाई सनस्क्रीन. Otherwise your skin can be like photosensitive because it will make your skin sensitive. So keep that in your mind. Next day when you woke up, first thing you need to apply is सनस्क्रीन. नेक्स्ट डे से आप विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हो. उसी दिन लाइक जिस दिन आप रात को इस्तेमाल करोगे उस रात को आप विटामिन सी भी इस्तेमाल मत करना. बस नेक्स्ट डे व्हेन यू वोक अप लाइक सुबह रात को किसी भी टाइम में विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हो. सपोज आपने ये सैटरडे को रात को इस्तेमाल किया है, सैटरडे नाइट को कोई भी एसिडिक थिंग इस्तेमाल मत करो, विटामिन सी भी इस्तेमाल ना मत करो. संडे को आप विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हो सुबह एंड रात बोथ. मंडे से आप नॉर्मल स्किन केयर कर सकते हो लाइक if you are using any kind of niacinamide, lactic acid, hyaluronic acid, salicylic acid, कोई कुछ भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हो. फ्रॉम मंडे से फ्राइडे इस्तेमाल करो, फिर सैटरडे इस्तेमाल करो एंड लाइक कंटिन्यू दिस. एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग दिस डू नॉट शेव योर फेस बिकॉज शेविंग कैन मेक योर स्किन सेंसिटिव. एंड ऑल्सो बिफोर अप्लाइंग दिस डू नॉट शेव योर फेस. एक दिन छोड़ के आप शेव करो, लाइक फ्राइडे एंड संडे को आप शेव मत करो. सैटरडे को अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो उसको छोड़ के आप कोई भी लाइक इस्तेमाल शेप कर सकते हो. सो दिस इज द थिंग. एंड ऑल्सो जब अगर आप इसे सैटरडे पे इस्तेमाल करते हो, संडे पे कोई होम रेमेडीज इस्तेमाल मत करो लाइक स्पेशली द लेमन थिंग, लेमन टोमेटो नो बिकॉज दे हैव लाइक साइट्रिक एसिड एंड इस्तेमाल ही मत करो. दैट विल लाइक मेक योर स्किन डिजास्टर. So this is the skincare part.
सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कवर किया है. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द कंपैरिजन पार्ट, व्हिच इज द फोर्थ पार्ट एंड व्हिच इज द लास्ट पार्ट. सो व्हिच इज द बेस्ट, ऑर्डिनरी वन और दिस वन, एंड डू यू नीड दिस? सो आई विल टॉक अबाउट दिस ऑन द फोर्थ पार्ट. तो ऑर्डिनरी वन का जो प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी वन इज नॉट आवर इंडियन ब्रांड. आपको वो बाहर से मंगवाना होगा बिकॉज इंडिया पे वो नहीं मिलता. यू कैन बाय दिस फ्रॉम नायका, क्योंकि नायका पे अवेलेबल नहीं है. आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक लाइक फॉर मी, आई डोंट थिंक कि वो ओरिजिनल है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है. सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट. सो मैं जहां से ओरिजिनल का प्रोडक्ट खरीदती हूँ, ऑर्डिनरी का जो प्रोडक्ट खरीदती हूँ, विच इज फ्रॉम कल्ट ब्यूटी. दे लाइक आपको वो ओरिजिनल ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट बाहर से आपको देगा. सो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत टाइम वेट करना होगा बिकॉज इंडिया पे वो मैक्सिमम टाइम अनअवेलेबल रहता है. सो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, कभी कभार 2 मंथ भी हो जाता है. ऑनेस्टली आई एम वेटिंग फॉर 3 मंथ एंड मुझे अभी तक वो नहीं मिला है. सो द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस. ये इसका जो प्राइस है, आई थिंक दिस इज दिस इज 699. एंड ये मैंने मिनिमलिस्ट का जो ओरिजिनल जो वेबसाइट से वहां से मैंने खरीदा है, मैंने कहीं और से नहीं खरीदा है. आई विल लिंक डाउन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ऑर्डिनरी का जो प्रोडक्ट है उसका जो ओरिजिनल प्राइस है विच इज क्वाइट सिमिलर टू दिस इंडियन करेंसी पे, बट एज आपको वो बाहर से मंगवाना होगा, जो ओरिजिनल प्राइस है ऑलमोस्ट वही प्राइस आपको दोबारा पे करना होगा फॉर द टैक्स. सो कुल मिला के आपको फुल पे करना होगा 1300 रुपीज. अगर आप किसी इंस्टाग्राम स्टोर से बाय करते हो जो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको देता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेज है, तो इट विल कॉस्ट ऑलमोस्ट 1500, कभी कभार 1800 भी पड़ जाता है, बट दिस इज ओनली 700. यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द हाफ प्राइस. ऑर्डिनरी अच्छा है कि ये अच्छा है, एंड बिलीव मी आई हैवंट यूज्ड दैट ऑर्डिनरी वन, सो आई कैन टेल यू द इफेक्ट, बट आई हैव यूज्ड दिस एंड आई कैन एश्योर यू दैट अगर मैं इतनी बार ये सजेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इतना बिग एंड विदाउट लाइक एनी स्पॉन्सरशिप और एनीथिंग, विदाउट एनी कोलैबोरेशन, मैंने ये खुद बाय किया है. दे इवन डोंट नो दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो आप मुझे लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो दैट मच गुड दिस प्रोडक्ट इज. एंड ऑल्सो ऑर्डिनरी वन पे ये PHA थिंग नहीं है, वो यहाँ पर PHA थिंग है. दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग बिकॉज इट विल लाइक प्रोटेक्ट योर सेंसिटिविटी 50% तक. सो कीप दैट इन योर माइंड. एंड ऑल्सो ऑर्डिनरी वन का जो pH लेवल है वो अप्रॉक्स 3.6 से वहां पर वो एग्जैक्ट वैल्यू है, बट यहाँ पर 3.4 to 3.8 है. सो दिस इज लाइक द बीच, ये उसका pH लेवल एंड इसका pH लेवल क्वाइट सिमिलर, बट उसका जो है वो लाइक एकदम अप्रॉक्स दिया गया है, बट यहाँ पर वो नहीं दिया गया है. सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू व्हिच यू वांट टू बाय. आई एम गोइंग टू लिंक डाउन दिस एंड थैंक यू मिनिमलिस्ट बिकॉज बिफोर अप्लाइंग दिस आई वॉज लाइक मैंने उनको इतने बार डिस्टर्ब किया है. ऑनेस्टली इंस्टाग्राम पेज पे उनका जो हैंडल है, आई वॉज लाइक वाई दिस इज, वाई PHA है, वाई BHA है, लाइक BHA का काम क्या है, PHA का काम क्या है, वो ऑर्डिनरी से ही क्यों बेहतर है. मैंने उनको मैसेज कर करके दिमाग खराब कर दिया था ऑनेस्टली, बट दे आर सो स्वीट. एवरी टाइम दे गेव मी रिप्लाई एंड रिप्लाई करने के बाद भी वो मुझे बोलता था लाइक इफ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली आस्क मी, वी विल लाइक लव टू गिव रिप्लाई. दे आर सो स्वीट. सो या दैट्स द रिव्यू. आई होप आपको पसंद हुआ है. आई नो इट्स बिग एंड मैंने बहुत सारा बातें किया है, बट ऑनेस्टली यू नीड टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग. सो अगर आप ऑर्डिनरी वन इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू दैट ट्राई दिस. यू आर गोइंग टू लव दिस. So yeah, that's it for today's video. Hope you have liked it and find something really very useful. So see you guys tomorrow again. Till then, bye, stay happy, and the most importantly, stay safe and stay home. Bye bye.